Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. We are here with our lecture number 2 of Human Resource Management. Of course the course code is MGT 350. So let's start. In the last lecture we discussed about the title and the course code, and then we did some introduction, and then we moved on to the textbook, and then we discussed about the chapters we are going to do in this lecture. And then we also discussed about the processes and the functions of HRM. The next slide is going to remind you a little bit of that. And then we talked about the importance of HRM. This is diagram just for your recollection. We discussed about the human resource planning, recruitment, decruitment, then selection, and what is orientation, what is training, what is development, and how we go about developing the careers of employees, how do we compensate them, what kind of benefits do we give them, and then we talked about this performance management system. This is just for your recollection of the previous thing. And at the same time you can also see in this diagram that there is a outline to this diagram which is written as environment, the most outer outline. Now this actually is telling you that these functions might be different in different environments. Maybe there are a few functions which are not that important in some environments, and there are a few functions which are very important in a few environments. So ये आपको देख के चलना है कि किस environment में और किस तरह की organization में कौन कौन से functions हैं और कितनी उनकी importance है और किस level पे वो perform किए जाते हैं. आज का lecture हमारा जो है वो that is all about job analysis. And the reason for putting this job analysis lecture before the HRP and the recruitment and selection and other parts of HRM is because without the job analysis you cannot move further, you cannot perform any of these functions. The job analysis part of HRM department is so important that it actually covers almost all the areas of it, almost affect all the areas of your HRM process. So let's discuss about job analysis. First of all, let me tell you a little bit of job analysis. Let's suppose you are making a new organization, any sort of organization like a university, like a bank, or any other place like a manufacturing company or like a restaurant. अब आपको इसमें पता नहीं होता कि कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो आपको चाहिए. अगर पता होता है, प्रिसाइजली पता नहीं होता कि कौन सी जॉब्स चाहिए, कितने अमाउंट में कौन से लोग चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स उनकी होंगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या वो जॉब परफॉर्म करेंगे, कितने टाइम के लिए परफॉर्म करेंगे, इन सारी चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए, इस सारी चीज़ को असेस करने के लिए आप जॉब एनालिसिस का जो प्रोसेस है वो करते हैं. जॉब एनालिसिस के प्रोसेस में आपको डिफरेंट जगहों से डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, डिफरेंट चीज़ों को असेस करना पड़ता है, एंड देन यू कम अप विद the right number of people at the right place and at the right time, which we discussed in the last lecture. So now let's move on to the real part of job analysis. Now before we move on to the job analysis part, the actual essence of this lecture, I would like to discuss a few things regarding the organizational structure, culture, and different things about it. So first of all, defining the organizational structure. और ये important क्यों है जॉब एनालिसिस के लिए and the rest of the HR practices. हर ऑर्गेनाइजेशन का, as we will discuss in the next slide, structure different होता है. कुछ ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेटिक होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन फ्लैट होती हैं, कुछ टीम बेस्ड होती हैं. ये हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. बट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है? द फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जॉब्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि जॉब्स को किस तरह अरेंज किया हुआ है. बिकॉज ये जॉब की अरेंजमेंट ही आपका स्ट्रक्चर बनाती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है. अब इसमें जिस तरीके से आपने ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन किया होगा, दैट इज गोइंग टू गिव यू द जॉब की अरेंजमेंट, एंड अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू गिव यू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कि किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है.
अब इसमें कुछ ये की टर्म्स हैं, like 6 of them, they are very important to understand. First of all, a process involving decision about 6 key elements. जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं, स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, ये 6 चीजें उसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं, जो मैं आपको वन बाय वन समझाता हूं और साथ इस पर डिस्कशन करते हैं. नाउ फर्स्ट इज वर्क स्पेशलाइजेशन. आपको डिसाइड करना पड़ता है कि वर्क में कितनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन इन्वॉल्व है. स्पेशलाइज्ड वर्क क्या होते हैं? जिसमें आपने बहुत प्रिसाइज और बहुत एक्यूरेट रहना होता है अबाउट थिंग्स. तो वर्क स्पेशलाइजेशन कितनी इन्वॉल्व है, कितनी इन्वॉल्व नहीं है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन पे इम्पैक्ट करेगी. द सेकेंड थिंग इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं. एक दो स्लाइड्स में हम इसको डायग्राम के उसके साथ डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, बट लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट. डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब यह है कि क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं या बहुत कम डिपार्टमेंट्स हैं. एक डिपार्टमेंट ही सारा कुछ कर रहा है या आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए और डिफरेंट लेवल्स बनाए हुए हैं. तो ये चीज भी आपके ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन को डिफरेंट तरीके से इंपैक्ट करती है. नाउ चेन ऑफ कमांड. चेन ऑफ कमांड आपकी डिसाइड करती है कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है. चेन जैसे होती है आपके पास, चेन में एक के साथ दूसरा चेन और तीसरा चेन और उस तरह एक चेन बनी होती है. इसी तरह चेन ऑफ कमांड में आप ये बता रहे होते हैं कि कमांड किस तरह फ्लो करती है, कौन किसको कमांड करता है, कौन किसको हुक्म देता है या कौन किसको काम करने को कहता है, और फिर कौन किसको रिपोर्ट करता है. इसको हम चेन ऑफ कमांड कह देते हैं. स्पैन ऑफ कंट्रोल इज द नेक्स्ट टर्म. स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब, जैसे कि आपको लिटरली भी समझ थोड़ा आ रहा होगा, कि स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि एक इंसान या एक मैनेजर या एक एम्प्लॉई कितने लोगों को कंट्रोल कर रहा है एट टाइम्स. अगर तो एक जो मैनेजर है उसके सबऑर्डिनेट्स 5 हैं कि 5 लोगों को उसने कंट्रोल करना है, तो उस मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल इज 5. कुछ मैनेजर्स ऐसे होंगे जो 2 या 3 लोगों को सिर्फ मैनेज कर रहे होंगे, उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल 2 या 3 होगा. तो ये भी चीज आपको देखनी पड़ती है डिजाइन करते वक्त, कितने लोग किसको कंट्रोल कर रहे होंगे, कितने लोगों को कंट्रोल कर रहे होंगे. उसके बाद आपका आ जाता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं. और फिर फॉर्मलाइजेशन आ जाती है. ये 6 चीजों को समझना ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी व्हाट द स्ट्रक्चर्स आर फर्स्ट. अब यहां आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर हमें नजर आ रहा है कि इट्स अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर. दिस स्ट्रक्चर इज द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर. अब इस स्ट्रक्चर में आपने देखा कि आपके पास डिफरेंट हायरार्कीज बनी हुई हैं. लेट्स सपोज सबसे ऊपर आपके पास प्रेसिडेंट है, देन प्रेसिडेंट के नीचे आपके पास वाइस प्रेसिडेंट है, और अकॉर्डिंगली आपके पास नीचे लोग आ जाते हैं. लास्ट में आपके पास फैकल्टी आ जाती है जो कि टीचर्स हैं. लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी का आपके पास एक डायग्राम बना हुआ है स्ट्रक्चर का. इसमें आप लेवल अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 लेवल्स हैं जिसपे डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं. और अगर हम इसको मजीद देखें, लेट्स ओके, नाउ वी विल गो बैक टू दिस स्लाइड एंड वी विल सी दैट दिस इज आवर फर्स्ट लेवल. ये क्या है? प्रेसिडेंट है. देन इस प्रेसिडेंट के अंडर 2 वाइस प्रेसिडेंट्स काम कर रहे हैं. तो दैट मीन्स इस प्रेसिडेंट का स्पैन ऑफ कंट्रोल इज 2, बिकॉज 2 पीपल आर वर्किंग अंडर दिस एम्प्लॉय. और यही चीज हमें चेन ऑफ कमांड भी बता रही है कि ये इसको रिपोर्ट करेंगे, ये इसको रिपोर्ट करेगा, और ये इनको कमांड करेगा, और ये इसको भी कमांड करेगा, बिकॉज इट्स अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर. तो इसमें बहुत सारी हायरार्कीज होती हैं कि आपने मैनेजमेंट में डेफिनेटली पढ़ा होगा. अब इस वाइस प्रेसिडेंट के नीचे 2 डीन्स हैं और इस वाइस प्रेसिडेंट के नीचे भी 2 डीन्स हैं. तो इसका और इसका दोनों का स्पैन ऑफ कंट्रोल इज 2, लेकिन इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल इन तक 2 है, और अगर इनको हम साथ मिला लेते हैं तो देन देयर स्पैन ऑफ कंट्रोल बिकम्स 6. इसी तरह आगे डिफरेंट जो है वो चेयरमैन हैं या चेयरपर्सन हैं. हर एक डीन के नीचे 3 जो है
और लोग काम करें, तो इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल इज 3, और इन 3 में से फिर हर एक के नीचे जो है 1 2 3 4 फैकल्टी मेंबर्स आर वर्किंग। तो इस तरीके से ये एक स्टाइल बन जाता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। इसी के अकॉर्डिंगली अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे पास एक फ्लैट स्ट्रक्चर है। उसमें हमने देखा कि हमारे पास कितने लेवल थे, 5 लेवल्स, प्रेसिडेंट से लेके फैकल्टी तक। ये फ्लैट स्ट्रक्चर में नॉर्मली एक बंदा है और वो 3 लोगों को कंट्रोल कर रहा है, और वो 3 लोग जो हैं वो इंडिविजुअली 4-4 लोगों को डील कर रहे हैं, एंड दैट्स इट। बहुत ज्यादा हमारा फ्लैट जो लेडर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत ज्यादा हायरार्कीज नहीं है इसमें, इट्स अ फ्लैट स्ट्रक्चर। फ्लैट को हम वैसे इस टर्म के साथ डील करते हैं कि जिस तरह फ्लैट है, और जो हायरार्किकल होता है उसको हम वर्टिकल में कहते हैं कि बहुत सारी इसमें हायरार्कीज बनी हुई हैं। तो ये हमें पहले देखना पड़ता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो किस तरीके का है, और कैसे जो है उसको हमने मैनेज करना और कैसे फिर उसको डिजाइन करना है। अब कुछ ये स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिनको हम बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि ये एक कंपनी और ये दूसरी कंपनी है, ये आपस में कनेक्टेड है, और हो सकता है कि ये एक दूसरे का रिसोर्स यूज कर रहे हैं। वो स्ट्रक्चर्स हमें क्या बता रहे थे कि वो अपने अंदर ही एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। बट यहां क्या है, कंपनी ए, कंपनी बी एंड कंपनी सी, all of them are interconnected. They might be using each other's resources, they might be using each other's employees, or they might be using each other's technologies. Let's suppose कंपनी C के पास अच्छा एम्प्लॉई है, वो कंपनी C के साथ भी काम कर रहा है और कंपनी A के साथ भी काम कर रहा है। इन द सेम वे अगर कंपनी C के पास अच्छी मशीन्स हैं तो A वाला C की मशीन यूज कर रहा है, ये इसके एम्प्लॉइज यूज कर रहा है और ये इसकी मशीन्स यूज कर रहा है। तो ये बाउंड्री लेस हो जाते हैं स्ट्रक्चर्स। देयर आर नो बाउंड्रीज कि ये रिसोर्स है, ये एम्प्लॉई है, इसने इधर ही काम करना है, इस मशीन ने सिर्फ इधर ही चलना है और इसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, बल्कि यू गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज, यू गो and you break the boundaries, you go into the other organizations, use their expertise and they in turn use your expertise. Sometimes mergers होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि सोनी एंड एरिक्सन, सोनी एरिक्सन ने मोबाइल्स बनाए थे, तो वो एक मर्जर था, एक टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था दूसरे की और दूसरा दूसरे की टेक्नोलॉजी यूज करके दे वर कमिंग अप विद समथिंग न्यू प्रोडक्ट, बट इट वाज नेम्ड आफ्टर सोनी एरिक्सन, बोथ द कंपनीज। तो इस तरीके से जब रिसोर्स यूज करने की बात आती है तो बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एक दूसरे का रिसोर्स यूज कर रही होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। फिर हमने बात की थी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की। अब इसमें देखें सिंपल क्या, द डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग इज कंसंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। लेट्स सपोज जो टॉप मैनेजमेंट है सारे डिसीजंस वही बना रही है और जस्ट नीचे कमांड दे देती है, हुक्म कर देती है कि ये काम ऐसे होगा एंड खत्म, दैट्स इट। तो इट इज अ वेरी हाई सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑल द डिसीजंस आर बीइंग मेड एट द सेंटर, वन पॉइंट विच इज द टॉप मैनेजमेंट। अगर एक सीईओ है या टॉप मैनेजर है, वो खुद प्लान करके डिसाइड करके चीजें नीचे डिसमिनेट कर देता है कि बस ये काम इस तरह से होंगे, खत्म, तो दैट इज अ हाईली सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। जिस तरह के लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशंस इन विच टॉप मैनेजर्स मेक ऑल द डिसीजंस एंड लोअर लेवल एम्प्लॉइज सिंपली कैरी आउट दोज ऑर्डर्स। ऑर्डर कर दिया जाता है लोअर एम्प्लॉइज को कि आपने ये फॉलो करना है। तो इट इज अ हाईली सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, द डिसीजन मेकिंग इज हाईली सेंट्रलाइज्ड। इसके ऑपोजिट क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, द ऑपोजिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन, व्हिच मींस organizations in which decision making is pushed down to the managers who are closest to the action. जिन लोगों ने काम करना होता है, जो लोग एक्चुअली प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होते हैं काम के साथ, अगर उनकी तरफ आपने पुश कर दिया डिसीजन मेकिंग, विच मीन्स कि उनको आप कहते हैं कि आप डिसीजंस बनाएं, किस तरीके से आप काम करेंगे, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाती है कि आपने लोगों को अथॉरिटी दे दी कि वो डिसीजन बनाए।
तो अगर सारे के सारे डिसीजंस टॉप मैनेजमेंट पे बन रहे हैं तो हम कहेंगे सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, और अगर डिसीजंस नीचे भी आ रहे हैं, निचले एम्प्लॉयज को भी पता चल रहा है, लोअर मैनेजर्स को भी पता चल रहा है, और वो डिसीजंस दे रहे हैं, तो फिर डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर हो जाता है। ये चीजें हमें जॉब एनालिसिस से पहले देखनी पड़ती हैं कि किस किस्म का स्ट्रक्चर है, ताकि उस किस्म की जॉब्स डिजाइन कर सके हम और उस किस्म का जॉब एनालिसिस कंडक्ट कर सकें। फॉर्मलाइजेशन, अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिसमें फॉर्मलाइजेशन बहुत हाई होती है। फॉर्मलाइजेशन है क्या, पहले तो उसको देखते हैं। द डिग्री टू विच जॉब्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर स्टैंडर्डाइज and the extent to which employees' behavior is guided by rules and regulations and procedures. अगर तो हर चीज के लिए बहुत rigid rules and regulations हैं, let's suppose आपने एक लेटर टाइप करना है और उसको प्रिंट करना है। अब डिपेंड करता है कि आपको अपने टॉप मैनेजर से एक अप्रूवल लेना पड़े कि कैन आई यूज द कंप्यूटर, कैन आई टेक अ प्रिंट, कैन आई टाइप ओवर द कीबोर्ड। अगर तो इतने छोटे से काम के लिए भी आपको किसी से इजाजत लेनी पड़ती है, उसका अप्रूवल लेना पड़ता है, तो फॉर्मलाइजेशन बड़ी हाई है, बिकॉज आपकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो आपका अपना फ्रीडम है काम करने का, दैट इज वेरी लो। यू कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन योर ओन, तो उसमें फॉर्मलाइजेशन जो है वो बड़ी हाई है। अब देखें हाईली एंड लो फॉर्मलाइज्ड जो है वो डिफरेंस क्या है उनमें। हाईली फॉर्मलाइज्ड जॉब्स ऑफर लिटिल डिस्क्रिशन ओवर व्हाट इज टू बी डन, कि एक एम्प्लॉय ने जो काम करना है, अगर उसके पास उसकी डिसीजन मेकिंग है ही नहीं, अगर उसने डिस्क्रिशन, वो अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकता जॉब में, तो हम कहेंगे कि दे आर हाईली फॉर्मलाइज्ड जॉब्स। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें रिक्वायरमेंट होती है कि पूछे बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, अपने टॉप मैनेजर से, अपने बॉस से पूछना पड़ता है। और बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिसमें आप पूछते नहीं हैं और आपकी जॉब में बहुत सारी डिस्क्रिशन होती है, आप बहुत सारे डिसीजंस खुद बना सकते हैं। वो कौन सी है? लो फॉर्मलाइज्ड जॉब्स, व्हिच मींस लो फॉर्मलाइजेशन मींस फ्यूअर कंस्ट्रेंट्स ऑन हाउ एम्प्लॉयज डू देयर वर्क। उनको रुकावटें ज्यादा नहीं होती, वो जो काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। बट अगेन इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ जॉब। अगर तो वाकई वो टाइप ऑफ जॉब इस तरह की है, इस नेचर की है कि उसमें इजाजत लेना बहुत लाजमी है, तो देन हाईली फॉर्मलाइज करना पड़ेगा उसको। अगर वो ऐसी जॉब है जिसमें इतनी ज्यादा इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, तो उसको फिर आप जो है वो लो फॉर्मलाइजेशन उसमें कर देते हैं। ये चीजें हमें स्ट्रक्चर में देखनी पड़ती हैं बिफोर यू मूव ऑन टू द जॉब एनालिसिस पार्ट, बिकॉज ये चीजें अगर समझ नहीं आएंगी तो आगे जॉब एनालिसिस प्रॉपर्ली कंडक्ट नहीं हो सकता। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास कुछ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिस तरह ब्यूरोक्रेटिक हमने पढ़ा, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ा, इसी तरह एक और डायमेंशन है ऑर्गेनाइजेशंस की विच इज कॉल्ड द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ नॉन लर्निंग होती हैं, कुछ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अब लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस और उसमें डिफरेंस क्या है कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज दैट हैज डेवलप्ड द कैपेसिटी टू कंटिन्यूसली लर्न, अडैप्ट एंड चेंज थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट बाय एम्प्लॉइज। जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे ही कोई नया फॉर्मूला आता है, जैसे ही कोई नई टेक्निक आती है, एंड इट इज गुड एज वेल, तो उसको फौरन अडेप्ट कर लेते हैं। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस फौरन उसको लर्न करती हैं, फौरन अडेप्ट करती हैं और फौरन उसको इंप्लीमेंट कर देती हैं और चेंज ले आती हैं, और जिस चेंज की वजह से वो इंप्रूव होती रहती हैं और वो कंटिन्यूस अपने गोल्स को अचीव करती रहती हैं। लेट्स सपोज आज से 10 साल पहले, मे बी 15 साल 10 साल पहले, सारे बैंक्स आपको टोकन सिस्टम होता था। यूज्ड टू गिव अ चेक, वो रजिस्टर में एंट्री होती थी, रजिस्टर के बाद डिफरेंट कैशियर उसको चेक करते थे और करने के बाद आपके सिग्नेचर्स चेक होते थे और फिर आपको पैसे मिलते थे। लेकिन नई टेक्नोलॉजी आ गई, कंप्यूटर ने सारा रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर दीज थिंग्स। साइन भी वहीं चेक हो जाते हैं, पेमेंट भी वहीं डेबिट क्रेडिट हो जाती है, सब कुछ हो जाता है और आपको फौरन पैसे मिल जाते हैं। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, बट अगर कोई लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसको पता चलेगा कि ये चीज हमारे लिए फायदेमंद है इन फ्यूचर,
इम्प्रूवमेंट आ सकती है, तो उसको बहुत जल्दी अपने प्रोसेस का हिस्सा बना लेंगे, अडेप्ट करेंगे, लर्न करेंगे और उससे फ़ायदा उठाना शुरू कर देंगे। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होती कैसी हैं? फर्स्ट, एन ओपन टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस डिज़ाइन दैट एम्पावर्स एम्प्लॉय। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन होता है वो इस तरीके से होता है, एक तो टीम बेस्ड होता है। टीम बेस्ड में क्या होता है कि कोई बॉस नहीं होता, कोई सबॉर्डिनेट नहीं होता, सारे एक ही लेवल पे ऑलमोस्ट काम कर रहे होते हैं। प्लस उस टीम को भी इस तरीके से डिज़ाइन किया होता है कि जिसमें हर किसी को एम्पावर कर दिया जाता है काम करने का। अगर 10 लोग काम कर रहे हैं और उन 10 लोगों में किसी एक के पास अच्छा सजेशन है, तो ही और शी इज allowed to give the share the idea। क्यों? क्योंकि अच्छा आइडिया है, उसको लर्न करेंगे, अडेप्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर जाएगी, टीम का ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओपन टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन होते हैं उनके। देन एक्सटेंसिव एंड ओपन इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इनको इंफॉर्मेशन शेयर करने में कोई किसी किस्म का डर नहीं होता, ओपनली शेयर करते हैं। किसी को नया आइडिया या परेशान नहीं होता, वो ये नहीं है कि मेरा आइडिया चोरी हो जाएगा, मेरे आइडिया को कोई अप्रिशिएट करेगा नहीं करेगा। दे ओपनली शेयर इट विद ईच टीम मेंबर। इससे फायदा क्या होता है कि अगर वो आइडिया अच्छा हो, इम्प्लीमेंट हो जाए, सारी ऑर्गेनाइजेशन उसको लर्न करती है, अडेप्ट करती है, इम्प्लीमेंट करती है और ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो जाता है। तो दूसरा इनका ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। Then leadership that provides a shared vision of organization's future, support and encouragement। लीडरशिप, जो टॉप पे लोग बैठे हुए हैं, जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को, दे हैव अ शेयर्ड विजन। शेयर्ड विजन का मतलब यह है कि जो वो खुद सोच रहे होते हैं कंपनी के लिए, वो सबको बताते हैं ताकि गोल अचीवमेंट करना इजी हो जाए। तो इसलिए शेयर्ड विजन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। देन अ स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ शेयर्ड वैल्यूज, ट्रस्ट, ओपननेस एंड सेंस ऑफ कम्युनिटी। वहां कल्चर ऐसा होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस जगह का इस तरह के नॉर्म्स एंड वैल्यूज सेट होती हैं कि सारे एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं एंड दे हैव द सेम वैल्यूज एंड दे फॉर्म अ कम्युनिटी जिसमें एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे के साथ रह के, अच्छी बुरी बातें एक दूसरे की बता के, उसको अडेप्ट करके, उसको लर्न करके, उसको चेंज करके आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, इनकी जॉब्स को डिजाइन करना, जॉब का एनालिसिस करना इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा जी, जॉब डिजाइन एंड ऑल्सो जॉब रीडिजाइन। जॉब डिजाइन है क्या? The process of systematically organizing work into tasks that are required to perform a specific job। अब जॉब में और जो टास्क है इसमें डिफरेंस होता है। Many tasks combine to make a one job। Let's suppose आपके पास यहां है टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 एंड टास्क 4। ये टास्क जो है इट इज अ स्मॉलर पार्ट, व्हेन यू कंबाइन दीज टास्क्स इनटू वन थिंग इट बिकम्स अ जॉब। और इनको सिस्टमैटिकली करना होता है। सिस्टमैटिकली क्या मतलब है कि पहले टास्क 1 होगा, फिर टास्क 2 होगा, फिर टास्क 3 होगा एंड फिर टास्क 4 होगा। लेट्स सपोज इफ यू आर मेकिंग फूड, इफ यू आर कुकिंग समथिंग, तो वेजिटेबल्स को पहले आप उनकी कटिंग करेंगे, बल्कि उससे पहले भी आप क्या करेंगे, यू विल क्लीन देम, दैट इज टास्क 1। देन यू आर गोइंग टू कट देम प्रॉपर्ली एंड देन यू आर गोइंग टू कुक देम। आप ये नहीं कर सकते कि आप पहले कुक कर लें फिर काट लें, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, या क्लीन उनको ना करें और डायरेक्टली कुक कर लें। सो टास्क आर सिस्टमैटिकली अरेंज्ड। ऐसे अरेंजमेंट होती है कि लॉजिकल अरेंजमेंट हो, जो चीज पहले होनी है वो पहले हो और जो बाद में होनी है वो उसके बाद में हो। तो उसको हम जॉब डिजाइन कह देते हैं। जब सिस्टमैटिकली आपने चीजों को अरेंज किया होता है, टास्क को, टू मेक अ वन जॉब, तो उसको आप कह देते हैं कि इट्स अ जॉब डिजाइन। अब जॉब क्या है? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज एंड ड्यूटीज हेल्ड बाय अ सिंगल एम्प्लॉई
और अ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने हैं, डिफरेंट ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। जब उनको कंबाइन कर लेते हैं कि एक बंदा, एक एम्प्लॉय, एक ह्यूमन बीइंग ये काम करता है, ये ड्यूटीज परफॉर्म करता है, तो उसको हम कह देते हैं कि इसकी ये जॉब है। मतलब कि अगर ये ड्यूटी 1, ड्यूटी 2, ड्यूटी 3, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 कंबाइनली इस टाइम पे इस सीक्वेंस में परफॉर्म करेगा, तो दैट बिकम्स अ वन जॉब। तो ये समझना जरूरी है। अब इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट है जॉब रीडिजाइन। समटाइम्स एक जॉब हो रही होती है, बंदा एक काम कर रहा होता है और वो मोनोटोनस हो जाती है। मोनोटोनस का मतलब ये कि बोरिंग हो जाती है। समटाइम्स यू नीड टू रीडिजाइन इट, कि पहले एक तरीके से काम कर रहे थे, अब आपने दूसरे तरीके से काम करना है, तो जॉब रीडिजाइन। पहले से ऑलरेडी डिजाइंड होती है, बट आप उसमें थोड़ी चेंजेस करके उसको रीडिजाइन कर देते हैं, तो वो भी जो है हमारा जॉब एनालिसिस का पार्ट है। अच्छा, अब इसमें दूसरा आपको ये देखना होता है कि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो टीम बेस्ड होती हैं। टीम बेस्ड जॉब की जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल बताई हुई है रेस्टोरेंट की, ये भी मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह रेस्टोरेंट की जॉब टीम बेस्ड जॉब होती है। पहले इसको देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। जॉब डिजाइन्स दैट फोकस ऑन गिविंग अ टीम rather than an individual a whole and meaningful piece of work to do, and empowering team members to decide among themselves how to accomplish the task or the work. आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड वहां लिखा होता है कि you are going to be served within 20 minutes। मतलब यह है कि आपने ऑर्डर दिया और ऑर्डर देने के बाद 20 मिनट के बाद आपको खाना मिलेगा। नाउ इट इज अ जॉब। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। क्या क्या एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं रेस्टोरेंट की जॉब में? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई आपको ग्रीट करेगा जब आप अंदर जा रहे होंगे। देन यू आर गोइंग टू प्लेस एन ऑर्डर कि मुझे ये चीज चाहिए, ये मैंने खाना है, इस मेन्यू से ये चीज चाहिए, इस मेन्यू से ये चीज चाहिए, ऑर्डर कर देंगे। ऑर्डर एक बंदा लेके जाएगा एंड किचन में चला जाएगा और वहां क्या हो रहा होगा? आपकी कुकिंग हो रही होगी। आपके एग्जैक्ट ऑर्डर के मुताबिक कुकिंग होगी और कुकिंग के बाद उसमें जो डेकोरेशन होगी, डेकोरेशन के बाद उसमें फिर आपको सर्विंग हो जाएगी। अब ये क्या है? ये ग्रीटिंग हुई आपको पहले, फिर आपने ऑर्डर दिया, फिर कुकिंग हुई, फिर कुकिंग होने के बाद उसको डेकोरेट किया गया और फिर आपको सर्व कर दिया गया। अब आप इसमें अगर गौर से देखें तो ग्रीटिंग करने के लिए कुक बाहर नहीं आएगा, ना ही ऑर्डर लेने के लिए ग्रीटिंग वाला बंदा आएगा। मे बी इन स्मॉल रेस्टोरेंट्स यस, बट अदरवाइज इफ इट्स अ लिटिल 3 स्टार 4 स्टार होटल, तो उसमें रेस्टोरेंट होगा और वो आपको इस तरीके से टास्क परफॉर्म करके आपके पास 20 मिनट्स में मील लेके आएगा। लेट्स सपोज अगर ऑर्डर जो है इसने लिए हैं 3 मिनट ऑर्डर लेने में और कुकिंग वाले ने लिए हैं अराउंड 10 मिनट्स और फिर डेकोरेशन वाले ने 2 मिनट्स लिए और सर्विंग वाले ने इसमें अराउंड 5 मिनट्स ले लिए, तो ये टोटल मिला के आपके 20 मिनट्स बन जाएंगे। जिसका मतलब ये है कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है नॉर्मली अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल। ग्रीटिंग वाला बंदा 1, दिस इज 2 जो आपसे ऑर्डर लेके गया, देन कुकिंग इज 3, दिस डेकोरेशन इज 4 एंड दिस सर्विंग इज 5। तो 5 लोगों के एफर्ट से 5 लोगों के डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने पे आपको एक जॉब मिली, एक खाना मिला जो एक जॉब है। सर्विंग द फूड इज वन जॉब। It consists of different activities and different activities are being performed by different people because they are expert in their own areas. Cooking वाला cooking में expert है, order लेने वाला has got expertise in taking orders. सजावट वाला या decoration वाला जो है वो उसमें expert है। तो अब बताने का मकसद ये है कि टीम बेस्ड जॉब्स कई दफ़ा इस तरह की होती हैं कि पूरी टीम को मिलकर काम करना पड़ता है। लेट्स सपोज अगर ऑर्डर लेने वाला ऑर्डर लेने के बाद टाइम पे ऑर्डर नहीं देता और इसको 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं, तो कुकिंग वाला 10 मिनट जो है वो लेट हो जाएगा और फिर डेकोरेशन वाला 2 मिनट लेट हो जाएगा और फिर सर्विंग वाला
2 मिनट लेट हो जाएगा तो एंड में इवेंचुअली 22 मिनट्स में आपका खाना आएगा, विच हैज डिस्टर्ब्ड द जॉब, बिकॉज जॉब वॉज टू सर्व द फूड विद इन 20 मिनट्स। इस तरह कई दफ़ा आपको ऐसी जॉब्स होती हैं जो टीम बेस्ड होती हैं और पूरी टीम उनको मिलकर कर रही होती है, और उसमें किसी के पास इतना मौका नहीं होता कि वो अपने टास्क को डिले करे, अर्ली करे या उसमें डिफरेंट चेंजेस लेके आए, बिकॉज इट्स अ टीम बेस्ड जॉब। सारे मिलकर काम करेंगे तो बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे, अदरवाइज द जॉब कैन नॉट बी परफॉर्म प्रॉपरली। इस सारे जो डिज़ाइन पढ़ा हमने और टीम बेस्ड जॉब्स पढ़ी, फॉर्मलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन पढ़ी, अब जब हम जॉब्स को एनालाइज कर रहे होंगे तो उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म जो है दैट इज कॉल्ड एर्गोनॉमिक्स और ह्यूमन इंजीनियरिंग। वी आर also going to talk about this thing, the human engineering or the ergonomics, in the end of our topics, towards the end of the lectures, because उसमें हम health and safety पढ़े होंगे तो फिर उसमें ergonomics का जो है वो topic आ जाएगा। But let's take a little introduction of this thing. Human engineering क्या चीज़ है? An interdisciplinary approach that seeks to integrate and accommodate what? The physical needs of workers into the design of jobs. हम कहते हैं कि ऑफिस में 8 आवर्स काम करते हैं। Why 8 hours? Why not 24 hours? Because your body cannot take more than 8 hours. It needs rest. खाना खाना होता है, आपने चाय पीनी होती है, रेस्ट चाहिए होती है, रात को सोना होता है, so you're ready for the next morning. ये चीज़ हमें किसने बताई? साइंस ने बताई या हमारे एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला। बट दिस ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद सच थिंग्स इज कॉल्ड ह्यूमन इंजीनियरिंग और एर्गोनॉमिक्स, जो हमें बताती है कि ह्यूमन लिमिटेशंस क्या है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैन नॉट वर्क मोर देन 8 आवर्स, इट्स अ सिंपल साइंस। फिर अगर आप कहते हैं कि जो काम आपके लिए क्रेन एक कर रही है, ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डू इट, इतना लोड नहीं उठा सकता, because it has limitations, it has certain boundaries. तो वो साइंस आपको सारी जो है एर्गोनॉमिक्स या ह्यूमन इंजीनियरिंग से पता चलती है। तो जब भी आपने जॉब्स को डिजाइन कर रहे होना है तो यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग कि ह्यूमनली पॉसिबल एंड ह्यूमनली इम्पॉसिबल चीजें क्या है एंड किस लिमिट तक, किस बाउंड्री तक पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास, किस तक पॉसिबिलिटीज नहीं है। ये इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है जॉब डिजाइन करने में। क्या करता है? इट एम्स टू अडैप्ट द एंटायर जॉब सिस्टम, द वर्क एनवायरमेंट, मशीन्स, इक्विपमेंट्स एंड प्रोसेसेस टू मैच ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंट, वर्क एनवायरमेंट। क्या मैं, आप या कोई भी ह्यूमन बीइंग 80 डिग्री सेल्सियस पे काम कर सकता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे काम कर सकता है? नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू इट बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स। We cannot tolerate temperature after certain limits. अगर मशीन्स हैं या कोई ऐसी जगह है जहां टेम्परेचर बहुत हाई है, तो उसकी जॉब को डिजाइन करते वक्त आपको यू माइट हैव टू गिव दोज एम्प्लॉयज सम सूट्स जो उनको उन तक हीट ना पहुंचने दें। या जिस तरह आइसक्रीम की फैक्ट्रीज में द टेम्परेचर इज एट इवन बिलो द फ्रीजिंग लेवल, बिकॉज उन्होंने आइसक्रीम को जो है वो फ्रीज करना होता है और डिफरेंट उनकी एक्टिविटीज हैं। वहां क्या होता है? पीपल आर वेयरिंग दोज सूट्स जो आपको गर्म रखते हैं। तो ये इन्वायरमेंट और ये एर्गोनॉमिक्स जो है हमें सारा कुछ ये बताता है कि क्या क्या चीजें हमने कैटर करनी है बिफोर वी डिजाइन अ जॉब। अब हम देखते हैं कि जॉब एनालिसिस जो है वो है क्या चीज। अब इससे पहले हमने जितनी डिस्कशन की दैट वाज ऑल द प्रेपरेशन ऑफ डिजाइनिंग अ जॉब। एंड इसके जो नेक्स्ट स्लाइड में 2 पार्ट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बट लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ द एक्टिविटीज विद इन अ जॉब। एक्सप्लोरेशन, असल में हम सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जॉब में क्या चीज है। एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे, क्या क्या टास्क्स करने पड़ेंगे और किस किस्म की क्वालिफिकेशन, किस किस्म की स्किल, किस किस्म की एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व कि वो जॉब प्रॉपर्ली परफॉर्म हो सके। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको जरा डिटेल में इसके पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इट ऑल्सो डिफाइंस एंड डॉक्यूमेंट्स द ड्यूटीज,
responsibilities and accountabilities of a job, and the conditions under which a job is performed. अब हो क्या रहा है कि आपने जॉब एनालिसिस में एक्सप्लोरेशन की, आपने देखा कि इस जॉब की ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कैसे परफॉर्म हो सकती है, किस तरह का बंदा इसको परफॉर्म कर सकता है. नाउ लेट्स clear this concept with these two things, because they are the most important things in job analysis. If you understand these two things, you easily will be able to understand the rest of the topic. Now, job analysis, as we can see that it has been divided into two things. First of all, you will have to remember it that these two things are just the documents. They can be in a form of one paper, they can be in a form of one book, or they can be in a form of different books. But one is job description, this is the first part, and this is the last and the second part, main part of job analysis. First is called job description, and the second one is called job specification. Now the real difference between these two things is कि जॉब डिस्क्रिप्शन में, जैसे इंग्लिश में आपको समझ आ रहा होगा कि आप जॉब को डिस्क्राइब करते हो. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इन जॉब डिस्क्रिप्शन यू आर एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द जॉब, कि जॉब है क्या, जिसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है उसके. जॉब टाइटल, जनरल मैनेजर है, एमटीओ है, पियोन है, क्लर्क है, हेड क्लर्क है, टीचर है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है. दीज आर ऑल द टाइटल्स. ये आपने देखना कि टाइटल क्या है जॉब का, वो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में आ जाए, बिकॉज नाउ वी आर डिस्क्राइबिंग द जॉब. ये पार्ट हमारा जॉब से रिलेटेड है, एंड दिस पार्ट इज रिलेटेड टू पर्सन. ये भी मैं इस पे भी आऊंगा, फिर आपको बताता हूं कि किस तरह ये पर्सन के साथ एसोसिएटेड है और किस तरह ये जॉब के साथ एसोसिएटेड है. जॉब लोकेशन, सेकंड थिंग, किस जगह पे जॉब परफॉर्म करनी है. आइदर इट्स एन ऑफिस जॉब, और इट्स अ जॉब वेयर मशीन्स आर रनिंग, और इट्स अ फील्ड जॉब, क्या बाहर जाके आपको काम करना पड़ेगा, जैसे सेल्स में या डिफरेंट जो है आपकी एक्टिविटीज. कहाँ, किस जगह पे आपको वो जॉब परफॉर्म करनी है, वो आपकी जॉब लोकेशन आपको बता देगा. जॉब टाइटल, जॉब लोकेशन. देन जॉब समरी, विच मीन्स कि उस जॉब को आपने एक छोटी सी फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट किया होता है. 10 लाइनें हो सकती हैं, 15 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, 2 पेजेस हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द जॉब. उसकी छोटी सी समरी आपने लिखी होती है कि इस जॉब में ये चीजें आपने परफॉर्म कर दी हैं और इस तरीके से परफॉर्म होंगी ये चीजें. दैट इज कॉल्ड जॉब समरी. अब उसमें जो चौथा एलिमेंट है, दैट इज रिपोर्टिंग टू. मतलब यह है कि इस जॉब पे रहते हुए एम्प्लॉय किसको रिपोर्ट करेगा. क्या उसका कोई बॉस होगा, क्या उसका एक से ज्यादा बॉसेस है, उसने रिपोर्ट करना है, मंथली करना है, ईयरली करना है, वीकली करना है, डेली करना है, और किसको करना है. तो रिपोर्टिंग टू का एलिमेंट इसमें शामिल होगा. लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर है और उसकी हम जॉब एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम कहेंगे असिस्टेंट मैनेजर विल हैव टू रिपोर्ट टू द मैनेजर. व्हाई? बिकॉज मैनेजर जो है वो उसको कंट्रोल कर रहा है असिस्टेंट मैनेजर को, और असिस्टेंट मैनेजर ने उसको रिपोर्ट करना है. इट कैन बी ऑन द डेली बेसिस, वीकली बेसिस और मंथली बेसिस, और जैसी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है. तो जॉब डिस्क्रिप्शन में आपने जॉब टाइटल बता दिया, जॉब लोकेशन बता दी, जॉब समरी बता दी, रिपोर्टिंग टू बता दिया कि किसको रिपोर्ट करना है. वर्किंग कंडीशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहां काम करना है क्या वहां टेम्परेचर मेंटेन्ड है, क्या वहां नॉर्मल जो है आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो कितनी है, कितनी हो सकती हैं, क्या प्रोटेक्शन है उनके लिए. तो वर्किंग कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्या आपके इर्द गिर्द लोग होंगे, क्या आपके इर्द गिर्द लोग नहीं होंगे, ये सारा आप वर्किंग कंडीशंस में बता देते हैं. देन जॉब ड्यूटीज, जो भी हमने जॉब पढ़ते हुए देखा, जॉब डिजाइन को भी देखा और उसमें भी देखा कि कौन कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, कौन से टास्क हैं जिनको परफॉर्म करके वो जॉब बनेगी, कौन सी ड्यूटीज हैं, कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आपने परफॉर्म करनी है, तो आपकी जॉब कंप्लीट होगी. देन मशीन टू बी यूज्ड,
क्या आप कंप्यूटर पे काम करेंगे? क्या आप एक टैब पे काम करेंगे? क्या आपको रजिस्टर पे लिखना पड़ेगा? क्या आप हाथ से स्टिच कर रहे होंगे या आपको मशीन मिलेगी? तो ये सारी चीजें आपने डिफाइन करनी होती हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में। एंड देन द हैजर्ड्स। हैजर्ड्स का मतलब है जो भी वहां रहते हुए खतरे हैं आपको। लेट्स सपोज जब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है तो उसमें पीपल आर ऑलवेज वेयरिंग हैट्स, हेलमेट्स। रीजन बीइंग कि कंस्ट्रक्शन के काम में कुछ भी ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें उनके सर पे चोट लग सकती है, कुछ हो सकता है। कोई जो है वो ईंट है या ब्रिक है वो ऊपर से गिर सकती है, सर में लग सकती है, कुछ है। सेफ्टी के लिए उन्होंने चीजें पहनी होती हैं। फायर ब्रिगेड है, उन्होंने पूरा सूट पहना होता है बिकॉज दे हैव टू एंटर इनटू फायर, आग जाके बुझानी होती है। तो इस तरीके से आपने हैजर्ड्स साथ बताने होते हैं कि कौन कौन से हैजर्ड्स साथ इन्वॉल्व है। नाउ जॉब स्पेसिफिकेशन। The most important thing to understand is that this part of the job analysis will talk about the job itself, job. And this second part is going to be telling you about the person. Job क्या है? किस तरह का बंदा उसको परफॉर्म कर सकता है? जॉब क्या है is described in job description. किस तरह का बंदा उसको परफॉर्म कर सकता है? That is given in job specification. पर्सन, किस तरह का पर्सन जो है वो इसको परफॉर्म करेगा एंड व्हाट इज द जॉब। ठीक है, अब इसमें देखें फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए उस बंदे को। मास्टर्स किया हो, एमफिल किया हो, बैचलर्स किया हो, मैट्रिक किया हो, क्लास 10 पढ़ी हो, क्लास 12 हो, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, पीएचडी चाहिए, क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन। किसके लिए क्वालिफिकेशन? जो ये वाली जो गिवन जॉब, गिवन ड्यूटीज हैं, टास्क हैं, ये परफॉर्म कर सके, क्वालिफिकेशन। देन द एक्सपीरियंस, कि क्या इस जॉब के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो कितना एक्सपीरियंस है? 3 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा इसको परफॉर्म कर सकता है, 4 साल वाला कर सकता है, 5 साल वाला कर सकता है, कैसे हो सकता है? देन द ट्रेनिंग, कि क्या उसकी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी आपने डिफाइन कर। देन स्किल्स कौन कौन सी चाहिए उसको। लेट्स सपोज आपने एक टाइपिस्ट हायर करना है, टाइपिंग तो आती है उसको, बिकॉज टाइपिंग इज द स्किल, वो टाइप करेगा, अच्छा टाइपिस्ट है, वो आपने इसमें जॉब स्पेसिफिकेशन में बताना है। देन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि किस किस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करना आती हो उसको, ताकि वो इस जॉब को प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सके। देन योर इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि क्या बहुत ज्यादा इमोशनल तो नहीं है, बिकॉज देर आर सर्टन जॉब्स जिनके लिए आपको ऐसा बंदा चाहिए जो ब्रेव हो। फायर ब्रिगेड में आपको ऐसे लोग चाहिए जो ब्रेव हो, जो फाइट कर सके, जो मुकाबला कर सकें आग का या डिफरेंट चीजों का। तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी साहब हम डिफाइन कर देते हैं। एंड देन सेंसरी डिमांड्स, कि उसकी सेंसेस कितनी तेज हों। जैसे आपको पता है कि जीडीबी पायलट जो होता है उसके लिए यू नीड टू हैव अ वेरी गुड एंड इफेक्टिव सेंसेस। आपकी आंखें ठीक होनी चाहिए, उसकी पूरी जो नजर है 6x6 होनी चाहिए, डिसेबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपने जॉब स्पेसिफिकेशन में बतानी है। अगेन आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू कि जॉब डिस्क्रिप्शन विल टॉक अबाउट ओनली द जॉब, job specification is going to talk about the person who can perform this job. This is the difference between these two, and it is very important to understand the difference. Otherwise you won't be able to like make good description and the job specification. And फिर दोबारा बता रहा हूं कि these are just two documents. एक पेपर पे आपने स्पेसिफिकेशन लिख दी, एक पेपर पे आपने जॉब डिस्क्रिप्शन लिख दी। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आते हैं जॉब एनालिसिस के प्रोसेस के बाद। नाउ द डायग्रामेटिक फॉर्म ऑफ जॉब एनालिसिस, कौन कौन सी स्टेजेस हमें करनी पड़ती हैं और किस ऑर्डर में होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग द जॉब एनालिसिस पर्पस, किस वजह से कर रहे हैं। क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर क्यों आप ये जॉब परफॉर्म करना चाह रहे हैं जॉब एनालिसिस? बिकॉज आपको जॉब्स चाहिए, आपको लोग चाहिए, और उससे पहले आपने देखना है किस तरह के लोग चाहिए, क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द जॉब कि यस वी वांट टू
डू द जॉब एनालिसिस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद फिर आप मूव करते हैं अंडरस्टैंड द रोल्स ऑफ जॉब्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट किस तरह है? डू यू थिंक हमें बैंक में फैकल्टी मेंबर्स चाहिए जो टीचिंग करें? नो। व्हाई? Because teaching members are needed in educational institutes like schools, colleges and universities. अब इसी तरह कैशियर्स जो हैं they are working in banks. क्या हमें स्कूल में, कॉलेज में एक से ज्यादा, एक तो ऑब्वियसली आपको फी के लिए या दूसरी ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए होगा, 2 चाहिए होंगे, 3 चाहिए होंगे अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंशन ऑफ स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी, बट यू डोंट नीड स्पेशलाइज्ड कैशियर्स बहुत सारे इन द यूनिवर्सिटी, बिकॉज वहां आपको क्या चाहिए? फैकल्टी मेंबर्स चाहिए, बिकॉज दैट्स एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वहां टीचिंग करनी है, आपको टीचर्स चाहिए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द रोल्स ऑफ जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब कुक की जॉब्स कहाँ अवेलेबल होंगी? ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में। वो स्कूल में नहीं होगी, बिकॉज वहां उसका रोल नहीं है, वहां उसका कोई काम नहीं है। तो इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन द third step is that you need to benchmark positions. Benchmarking position means कि 2 तरीके इसमें हो सकते हैं। एक तो आप खुद ही हायरार्की बना लेते हैं कि ये जॉब है और फिर उसके नीचे ये जॉब है, फिर उसके नीचे ये जॉब है और उसके पीछे नीचे ये जॉब है। आपने जॉब्स को एक लाइन में, ऑर्डर में बना लिया। देन बेंचमार्क जॉब्स। मेन चीज क्या है इसमें कि आप कंपेयर करते हैं विद द बेस्ट पीपल। कि अगर आपको कुक चाहिए तो what are the properties or the characteristics of a good cook? तो आप कहते हैं कि उसको बहुत अच्छा खाना बनाना आना चाहिए, उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उसमें ये हो, ये टास्क परफॉर्म कर सके, ये टास्क परफॉर्म, सैलड बड़ा अच्छा बना ले, ये कर ले, वो कर ले। इसको आप जहन में रखते हुए अपने लिए देखते हैं कि आपको किस किस्म का कुक चाहिए। यू आर एक्चुअली बेंचमार्किंग द जॉब्स। इसमें हो सकता है आपको फर्स्ट 2 टास्क जो हैं वो ना चाहिए हो और ये 2 टास्क ना चाहिए हो, बट ये और लास्ट 2 टास्क आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सॉर्ट ऑफ कुक, कि किस तरह का आपको एम्प्लॉय चाहिए। जब आप बेंचमार्क कर लेते हैं पोजीशंस को, देन यू गो फॉर कलेक्टिंग द डाटा। वो अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम करेंगे कि कौन कौन से हमारे पास मेथड्स होते हैं, बट आपको डाटा कलेक्ट करना होता है। डाटा कलेक्ट करने की क्या जरूरत है? लेट्स सपोज आई एम मेकिंग अ न्यू रेस्टोरेंट। अब मुझे नहीं पता कुक क्या करता है, तो आई विल गो टू द अदर रेस्टोरेंट्स एंड आई विल यूज माय प्रेफर्ड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। और मैं उसे डाटा कलेक्ट करके आऊंगा कि एक कुक ने करना क्या होता है, उसकी ड्यूटीज क्या होती हैं, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको क्या क्या जरूरत है, कौन सी मशीन चाहिए, कितना टाइम चाहिए, क्या किस तरह का यूनिफॉर्म चाहिए। तो वो मैं फिर ये करता हूं कि डिटरमिन हाउ टू कलेक्ट द जॉब एनालिसिस डाटा, और फिर उस पे मैं एक क्लैरिफिकेशन लेता हूं कि हाँ वाकई वो डाटा कलेक्शन सोर्स ठीक है मेरी या नहीं है, और डाटा कलेक्ट कर लेता हूं और उस डाटा कलेक्शन पे क्लैरिफिकेशन ले लेता हूं फ्रॉम डिफरेंट एक्सपर्ट्स। और उसके बाद ये सारे काम करने के बाद आई विल डेवलप अ ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्यों डेवलप करेंगे? बिकॉज इन द लास्ट स्लाइड आई टोल्ड यू दैट जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब एनालिसिस आर जस्ट द 2 डॉक्यूमेंट्स और जस्ट 2 ड्राफ्ट्स, जिसमें एक में आप लिख लेते हैं कि जॉब इटसेल्फ क्या है एंड दूसरे में आप लिख लेते हैं स्पेसिफिकेशन में कि जॉब को परफॉर्म करने के लिए किस तरह का पर्सन चाहिए, किस तरह का एम्प्लॉय, किस तरह का ह्यूमन बीइंग इज नीडेड। फिर आपने जब ये ड्राफ्ट डेवलप कर लिया तो इसको आप रिव्यू कराएं विद द सुपरवाइजर्स, विद द एक्सपर्ट्स। वो आपको बताएंगे कि इसमें ये गलती है, ये एग्जैजरेशन है, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है। जब वो आपके पास आ जाता है, देन यू आर डन विद द जॉब एनालिसिस पार्ट, because you have made your job description as well as your job specification। और फिर आप वही वाली जॉब डिस्क्रिप्शन जो है जॉब एनालिसिस करने के बाद और वही वाली स्पेसिफिकेशन एम्प्लॉय को बता देते हैं, जो उसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू हो जाता है। नाउ स्टेप्स इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व है वो देख लेते हैं।
स्टेप्स इन जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस डाटा कलेक्शन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हम कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ऑब्जर्वेशन मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉब एनालिस्ट वॉचेस एम्प्लॉइज डायरेक्टली और रिव्यू द फिल्म ऑफ द वर्कर ऑन द जॉब। जब एक बंदा जॉब परफॉर्म कर रहा है तो आप उसका देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड से कि ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है जॉब, और इसमें क्या क्या इसको डिफिकल्टीज आ रही हैं, कितनी दफा इसने कौन सा टास्क रिपीट किया है और कौन सा टास्क पहले किया है और कौन सा टास्क बाद में किया है, ये सारा आप उससे नोट कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड से। जो नेक्स्ट स्लाइड में इसकी मैं एग्जांपल के साथ भी आपको बताऊंगा कि कैसे हमें ये हेल्प कर सकता है। देन यू कैन ऑल्सो डू द इंडिविजुअल इंटरव्यूज, सेकेंड मेथड। मतलब आपको कुक चाहिए, कुक की आप जॉब डिजाइन कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी ऐसा बंदा, ऐसा एम्प्लॉय लें जो ऑलरेडी कुकिंग कर रहा है किसी एक रेस्टोरेंट में और आपसे मिलती जुलती उसकी जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। आप उससे इंडिविजुअल इंटरव्यू कर दें, क्वेश्चन आंसर्स कर लें, स्ट्रक्चर्ड हो जाए, अनस्ट्रक्चर्ड हो जाए। आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि वो कौन कौन से काम कर रहा है, कितनी डिफिकल्टी लेवल है, कितना काम वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो आप उससे इंडिविजुअली बात करके, इंटरव्यू करके, क्वेश्चंस पूछ के क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। जिसमें क्या कहता है, टीम ऑफ जॉब इनक्यूबेंट्स इज सिलेक्टेड एंड एक्सटेंसिवली इंटरव्यूड। मतलब जो लोग उस वक्त काम कर रहे होते हैं उन लोगों के पास जाएं और उनसे आप क्वेश्चन आंसर्स करें और उनसे पूछें कि आप किस तरीके से जॉब परफॉर्म करते हैं, कितने आवर्स आपको चाहिए होते हैं इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, कौन कौन से टास्क इन्वॉल्व है और डिफरेंट चीजें। एक और मेथड आप जो यूज कर सकते हैं दैट इज अ ग्रुप इंटरव्यू मेथड, कि आप बहुत सारे लोगों को बुला लेते हैं डूइंग द सेम जॉब। लाइक अगर आपने कुक चाहिए तो आप 4 या 5 कुक का ग्रुप बना लेते हैं और उनको इकट्ठा इंटरव्यू करते हैं, जिसमें कुछ बायसेस दूर हो जाती हैं, जिसमें कुछ एग्जैजरेशंस दूर हो जाती हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने ये 3 लोगों को ग्रुप बना लिया, ए, बी एंड सी, और आपने जब ए से पूछा कि आप कौन कौन से टास्क परफॉर्म करते हैं तो उसने कहा मैं टास्क 1, टास्क 2, टास्क 5 एंड टास्क 8 परफॉर्म करता हूं। बी से जब आपने पूछा तो बी ने कहा कि मैं टास्क 2, टास्क 8 एंड टास्क 9 परफॉर्म करता हूं। सी से जब आपने पूछा तो सी ने कहा कि मैं टास्क 3, टास्क 2, टास्क 8, टास्क 5 एंड टास्क लेट्स सपोज 10 मैं ये परफॉर्म करता हूं। आपने अब 3 लोगों से डिफरेंट व्यूज ले लिए। इसके बाद जब आपने देखा कि इसमें मोस्ट कॉमन टास्क कौन से आ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि 2 इसने भी परफॉर्म किया, इसने भी परफॉर्म किया, इसने भी परफॉर्म किया। दैट मीन्स 2 हैज गॉट समथिंग इंपॉर्टेंट इन इट। टास्क 2 आपने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। देन आपने देखा कि और टास्क 8 इसने भी यूज किया है, टास्क 8 इसने भी यूज किया, टास्क 8 ये भी यूज करा। दैट मीन्स ये टास्क 8 भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज सारे के सारे कुक्स ये यूज कर रहे हैं, सारे के सारे एम्प्लॉइज रिलेटेड टू योर जॉब सारे इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। फिर आपने देखा कि इसके बाद 5 इसने किया है, इसने नहीं किया और इसने भी 5 किया, तो फिर आप अगर इट इज रिलेटेड तो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके पास ये डाटा कलेक्ट हुआ और ये आपने देखा कि 2, 8 एंड 5 टास्क आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये हम कर लेते हैं। इस तरीके से आप कई दफ़ा ग्रुप इंटरव्यू मेथड यूज करके तो फिर भी डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ों का फ़ायदा हो जाता है। ये ऑब्जर्वेशन मेथड के लिए मैंने एक स्लाइड बनाई है, इसमें अगर आप देखें तो आपको ऑब्जर्व करते ही कुछ चीज़ें समझ आ जाती हैं। क्या समझ आई है कि ये लेट्स सपोज शी इज़ अ डॉक्टर, और डॉक्टर को हर वक्त अगर वो हॉस्पिटल में अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा है तो उसको स्टेथोस्कोप चाहिए, ही और शी शुड बी वेयरिंग अ वाइट कोट, और ये आपको ऑब्जर्वेशन मेथड से 2-3 चीजें बड़ी अच्छी पता चल गई। एट द सेम टाइम आप यहां देखेंगे तो फायर फाइटर है जिसने एक यूनिफॉर्म डिफरेंट किस्म का पहना हुआ है, फायर रेजिस्टेंट होगा। फिर इसको यहाँ मास्क चाहिए जिससे ये सांस लेता रहे, फिर इसको हेलमेट चाहिए कि अगर कोई चीज गिरती है तो इसके सर पे ना लगे। तो जस्ट
आफ्टर द ऑब्जर्वेशन आपने इन दोनों की जॉब्स को डिज़ाइन करते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई, जिस तरह हमने एर्गोनॉमिक्स में बात की थी ह्यूमन इंजीनियरिंग में कि प्रोटेक्शन कितनी है, सेफ्टी कितनी है, हेल्थ का कितना ख्याल रखना पड़ेगा। तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन से आपको जॉब का काफ़ी पता चल सकता है। तो ये कुछ उसका एग्जाम्पल था। फिर हमारे पास कुछ और जो जॉब एनालिसिस डाटा कलेक्शन मेथड्स हैं, उसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर मेथड है, जो हमें क्या बताता है कि हम एक क्वेश्चनर बना लेते हैं, एक पेपर पे डिफरेंट क्वेश्चंस रख लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड मींस कि सीक्वेंस और वर्डिंग उनकी सेम होगी क्वेश्चनर की हर किसी के लिए, और डिफरेंट लोगों को देते हैं जो वही काम कर रहे हैं जिस जॉब के लिए हम जॉब एनालिसिस कर रहे हैं, और उनसे वो फिल करवा लेते हैं। उनसे फिल करवाते हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन सा टास्क कौन परफॉर्म कर रहा है, कितनी दफ़ा परफॉर्म कर रहा है, कैसे उसमें रेपिटेशंस आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन सी मशीन्स इन्वॉल्व हैं, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, क्या है सारा कुछ। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। वर्कर्स कंप्लीट अ स्पेसिफिकली डिजाइंड क्वेश्चनर, उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे होते हैं, वो उसको टिक फॉर्म में कर सकते हैं या ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें वो लिख के दे सकते हैं आपको। तो ये एक और मेथड है डाटा कलेक्शन का। देन टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड है। ये क्या करता है? इट यूजेस सुपरवाइजर्स विद एन एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ द जॉब। जिन सुपरवाइजर्स ने सारी जिंदगी उन जॉब्स को सुपरवाइज किया होता है, उनके पास बहुत नॉलेज, बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं अपने काम में। अगर आप उनको मिला के उनसे बात करके उनसे डाटा कलेक्ट कर लेते हैं कि इस जॉब को परफॉर्म करने में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो उससे भी काफ़ी बेहतर हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि इस जॉब के लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये एक मेथड आप यूज करते हैं। देन द लास्ट मेथड इज द डायरी मेथड्स। यू कैन ऑल्सो यूज लॉट मेनी अदर मेथड्स इफ यू विश टू, बट इट डिपेंड्स कि कौन सा मेथड आपको सूट करता है, और मोस्टली ये मेथड्स यूज होते हैं जो हमने डिस्कस किए। डायरी मेथड क्या चीज़ है? डायरी मेथड का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉई है वो सारा दिन अपना काम करता है, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि उन्होंने एंड में डायरी लिख के जानी होती है कि सुबह से लेकर शाम तक मैंने ये टास्क परफॉर्म किए और ये काम किया। अब आप वो डायरीज यूज करके ये देख सकते हैं कि कौन कौन से टास्क और कौन कौन से काम जो है वो एक एम्प्लॉय कर रहा है, ताकि आप उसी जॉब को अकॉर्डिंगली मैनेज करें। तो इफ यू कलेक्ट लाइक 3, 4, 5 डायरीज ऑफ डिफरेंट पीपल, लेट्स सपोज कुक की जॉब को आपने डिजाइन करना है, जिसने कुकिंग करनी है, तो आप किसी एक प्रीवियस कुक की जो है वो डायरी देख लेते हैं। तो उस डायरी में उसने सीक्वेंस वाइज लिखा होता है कि आई केम इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock, आई वॉन माई यूनिफॉर्म पहनने के बाद मैंने जो है वो अपनी जो वेजीज हैं उनको देखा कि वो सही तरह कट हुई हैं नहीं हुई क्या है, फिर मैंने मीट को चेक कर लिया, और फिर मैंने उसके बाद जो है वो अपने स्टोव को और डिफरेंट चीज़ों को चेक किया, और फिर उसके बाद मैंने कुकिंग की। ऑर्डर्स मेरे पास आए, 20 ऑर्डर्स आए, 30 ऑर्डर्स आए, आई कुक देम इन दिस मच टाइम। ये सारी उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज उसने रिकॉर्ड की होंगी डायरी में। आपने उस डायरी को पढ़ के आपको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया हो जाता है कि क्या क्या जॉब्स में क्या क्या टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो ये एक और अच्छा मेथड है। बट नाउ द इशू इज कि कौन सा मेथड यूज किया जाए, तो उसका आंसर हमारे पास लास्ट सेंटेंस में है, द बेस्ट रिजल्ट्स आर यूजुअली अचीव्ड विद सम कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स। इसका मतलब क्या है कि आपके पास 5, 6, 10 डिफरेंट मेथड्स हैं डाटा कलेक्शन के। अगर आप कॉम्बिनेशन में इनको यूज करते हैं, लेट्स सपोज अगर आपने ऑब्जर्वेशन मेथड यूज किया है, तो मे बी सम जॉब्स आर नॉट प्रॉपर्ली डिजाइंड सिर्फ यूजिंग द ओनली ऑब्जर्वेशन मेथड, बिकॉज ऑब्जर्वेशन से आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता चली थी। तो फिर आपने इंटरव्यू साथ में ला लिया कि ऑब्जर्व भी किया, इंटरव्यू भी कर लिया, तो आपने कंबाइन कर लिया 2 मेथड्स को। हो सकता है आप उसकी डायरी भी चेक कर लें, तो 3 मेथड हो गए। तो whenever you are going to make a combination or combine 2 or 3 methods of data collection for job analysis, you are going to have better and good results. तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसी को करते हुए हमें जॉब एवेल्युएशन को भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। जॉब एवेल्युएशन इज टू स्पेसिफाई रिलेटिव वैल्यू ऑफ ईच जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एग्जाम्पल क्या है या किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं
कि एक आपके पास यहां जॉब है, लेट्स सपोज जीएम है, जनरल मैनेजर है, फिर आपके पास यहां मैनेजर है, और फिर आपके पास यहां असिस्टेंट मैनेजर है, और फिर आपके पास यहां ऑफिसर है। अब ऑब्वियसली आपको भी पता है, इट्स अ कॉमन सेंस, कि जनरल मैनेजर को आप लेट्स सपोज 2 लाख ऑफ रुपीस दे रहे हैं पर मंथ, इसको आप दे रहे हैं 1 लाख, इसको आप दे रहे हैं 50,000, और इसको आप दे रहे हैं लेट्स सपोज 30,000। अब इशू क्या है कि इस जीएम की जॉब की वर्थ ज्यादा है, जिस तरह इसने कहा रिलेटिव वैल्यू ऑफ ई जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है कि जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतने पैसे ज्यादा देंगे, उतने डिफरेंट तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा जॉब को। अब यहां अगर आप कंपेयर करें तो सबसे वैल्यूबल जॉब जो है वो जीएम की है, फिर उसके बाद मैनेजर की है, फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की, और फिर ऑफिसर लेवल की है। तो आपने जॉब्स को एवेल्युएट कर लिया कि किस जॉब की कितनी वैल्यू है और किस तरीके से उसको आपने कॉम्पनसेट करना है इन द एंड। अच्छा, अब ये थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव से हम देख लेते हैं कि जॉब एनालिसिस एंड द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क, इसमें क्या इशू है कि नई नई चीजें आ रही हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि इट इज बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज, द अर्थ और द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज, कि दुनिया बहुत एक दूसरे के नजदीक आ गई है, येट देयर आर डिफरेंसेस इन डिफरेंट कंट्रीज। लेट्स सपोज ग्लोबलाइजेशन की बात करते करते ही हम बाकी चीजें देखते हैं कि कितने जो है कंट्रीज में करेंसी का डिफरेंस क्या है। अगर पाकिस्तान में एक शख्स लाख रुपया कमा रहा है, वही लाख रुपया क्या अमेरिका में भी कमा रहा है, वही लाख क्या जर्मनी में भी कमा रहा है, यूके में भी कमा रहा है, इट डजंट हैव द सेम वैल्यू। तो जब भी हम जॉब डिजाइन कर रहे होंगे तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि इफ देयर आर ग्लोबल जॉब्स, जो दूसरी कंट्रीज में जाना पड़ता है इंसान को, या वहां की जॉब्स हैं जिस तरह एक्सपैट्रिएट्स वगैरह होते हैं, तो क्या उसमें कितना डिफरेंस आपने क्रिएट करना है, किस तरीके से जॉब्स को डिजाइन करना है। देन टेलीकम्यूटिंग उसमें कितनी इन्वॉल्व है, फिर उसमें जो है एडजस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है। अब दूसरे उसमें कहता है टुडेज जॉब ऑफन रिक्वायर नॉट ओनली टेक्निकल स्किल्स बट इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल। इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं आपस में लोगों से बात करने की स्किल्स। मिसाल के तौर पे जापान में पीपल स्पीक जापानीज। अब जो उर्दू बोलने वाला या इंग्लिश बोलने वाला बंदा है वो जापान में जाके काम नहीं कर सकता बिकॉज इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। तो इन चीजों को भी आपने केटर करना है कि कौन सी ट्रेनिंग उसको देंगे ताकि वो जापान में जाके प्रॉपर्ली अपना कम्युनिकेट कर सके लोगों से। तो इसलिए ग्लोबली आपने जॉब्स को देखना होता है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। नाउ लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब एनालिसिस। सिंपल टर्म्स में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज द डायग्राम इज टेलिंग यू कि हर पार्ट के लिए जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन जो उसके पार्ट्स हैं, इनका होना बहुत लाजमी है। नाउ वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह। रिक्रूटिंग, रिक्रूटमेंट क्या है कि आपने पूल ऑफ कैंडिडेट्स, कैपेबल कैंडिडेट्स इकट्ठा करना है। आपको पता ही नहीं है कि जॉब क्या है तो आप एड में क्या दोगे, कौन से लोगों को बुलाओगे, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या जॉब्स परफॉर्म करनी है। सो रिक्रूटमेंट के लिए जरूरी है कि आपका जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन हुआ हो ऑलरेडी। देन सिलेक्शन, सिलेक्शन करते वक्त आप किससे कौन सा टेस्ट लोगे, किससे क्या क्वेश्चंस पूछोगे इंटरव्यू में, किसी का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। ये जॉब एनालिसिस आपको बताएगी कि इस जॉब के लिए ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नॉलेज, ये स्किल, ये एबिलिटी इंपॉर्टेंट है। देन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये भी नहीं हम कर सकते बिकॉज हमें पता ही नहीं हमें कितनी जॉब्स चाहिए और किस तरह की जॉब्स चाहिए और कितने लोग चाहिए और किस जगह पे चाहिए कितने लोग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी जो है वो डिपेंड करती है जॉब एनालिसिस पे। देन एम्प्लॉय ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का क्या हमने मतलब देखा था कि अप टू डेटेड स्किल्स एंड नॉलेज देते हैं आप वर्कर को ताकि वो अपनी जॉब इजीली परफॉर्म कर सके। लेकिन जब हमें पता ही नहीं है कि उसने किस किस्म की जॉब परफॉर्म करनी है और कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत है तो हम उसकी ट्रेनिंग कर ही नहीं सकते। सो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जॉब एनालिसिस हुआ हो। देन एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे आगे, सक्सेशन प्लानिंग और ये डिफरेंट चीजें।
ये इसके बगैर नहीं हो सकती, बिकॉज डिफरेंट जॉब्स, लेट सपोज आपका मैनेजर से आपने जीएम बनना है, तो ये जीएम बनने और मैनेजर बनने में कौन कौन सी ट्रेनिंग्स इन्वॉल्व हैं, कितनी क्वालिफिकेशन का डिफरेंस है, ये सारा आपको कौन बताएगा? जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन आपको बता रही होगी। सेम विद द करियर डेवलपमेंट, कि तब तक आप उसका करियर डेवलप नहीं कर सकेंगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि जिस जगह पे आप उसको प्रमोट कर रहे हैं उस प्रमोशन या प्रमोटेड पोस्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट्स कौन बताएगा? जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, ओवरऑल जॉब एनालिसिस। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जॉब की ड्यूटीज का ही नहीं पता, आप कैसे उसको बताएंगे कि उसने क्या परफॉर्म करना है और क्या परफॉर्म नहीं करना। देन देयर इज कॉम्पनसेशन, जैसे हमने जॉब एवेल्युएशन की बात की, कितनी जॉब इंपॉर्टेंट है, कितनी ड्यूटीज हैं, किस तरह का वर्क एनवायरनमेंट है, उस हिसाब से कॉम्पनसेट करेंगे। हेल्थ एंड सेफ्टी, जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड में हमने देखा कि फायर फाइटर ने एक जैकेट पहनी हुई है, सिलेंडर पहना हुआ है, हेलमेट पहना हुआ है, ये सारी चीजें कहां से आ रही थी? हमें जॉब एनालिसिस से। देन लेबर रिलेशंस, लेबर रिलेशंस का मतलब ये है कि लेट सपोज आपने एक जॉब डिजाइन की और आपने कहा कि इसको हम 6000 सैलरी देंगे, 6000 रुपीज पाकिस्तानी रुपीज सैलरी देंगे। दैट्स नॉट फाइन, बिकॉज योर लॉ सेज कि आपने उसको 8000 या 10000 सैलरी से कम सैलरी नहीं देनी एम्प्लॉय को, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए लेबर लॉज भी आपकी जो है, लेबर रिलेशंस जो है, ये भी डिफाइन होती हैं जॉब एनालिसिस से। तो इन शॉर्ट, यू कैन नॉट परफॉर्म एनी ऑफ द फंक्शंस properly, any of the processes properly until unless you go for your good job analysis, out of which you should come up with job description जिसमें जॉब के बारे में लिखा हो, जॉब स्पेसिफिकेशन जिसमें पर्सन के बारे में लिखा हो, किस तरह के पर्सन की जरूरत है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है, जॉब एनालिसिस है, जॉब स्पेसिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकेंगे, बट बिफोर दैट यू विल हैव टू हैव योर जॉब एनालिसिस, और आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, अवेलेबल होने चाहिए। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स एंड दिस लेक्चर, और समरी में हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या आज किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट जॉब एनालिसिस, जिसमें हमने स्ट्रक्चर्स की बात की, और स्ट्रक्चर्स में हमने देखा कि हमारे पास ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, फ्लैट भी होते हैं, और बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, उस तरह की जॉब्स को हम डिजाइन करते हैं। फिर हमने बात की जॉब डिजाइन्स क्या होते हैं और जॉब रीडिजाइनिंग क्या होती है। जॉब डिजाइन हमने कहा सिस्टमेटिकली जब टास्क को हम बनाते हैं और वो डिफरेंट टास्क सीक्वेंस में मिलके एक जॉब बना देते हैं। फिर हमने डायमेंशंस की बात की ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल था, चेन ऑफ कमांड था, सेंट्रलाइजेशन थी, डिसेंट्रलाइजेशन थी, फॉर्मलाइजेशन थी, जिससे हमें पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स किस तरह के होते हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज कि हमने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन हमें बताती है कि जॉब क्या है, स्पेसिफिकेशन बताती है कि पर्सन कैसा चाहिए। देन वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन फॉर जॉब्स, जिसमें हमने कहा कि ऑब्जर्वेशन मेथड है, इंटरव्यू मेथड है, देन एक्सपर्ट ओपिनियन है, और डिफरेंट किस्म के आपके जो हैं वो मेथड्स अवेलेबल है, और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मेथड्स कैन प्रोवाइड यू वेरी गुड रिजल्ट्स। और फिर हमने इंपॉर्टेंस की बात की अभी रिसेंट स्लाइड में कि जॉब एनालिसिस किए बगैर आपको किसी किस्म का कोई फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म आप नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं होता, आपके पास वो रूटीन अवेलेबल नहीं होती, आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती जिस पे आपने बाकी सारे फंक्शंस को प्रॉपर्ली रन करना है। तो ये आज का हमारा सारा लेक्चर था। इसको रिवाइज करें और इसको देखें, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, एंड डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शंस और डिफरेंट जो जॉब स्पेसिफिकेशंस हैं उनको एक दफ़ा गो थ्रू करें ताकि आपको समझ आ जाए प्रॉपर्ली कि ये क्या चीज़ है। और उसका बेस्ट तरीका ये है कि इफ़ यू गॉट अ न्यूज़पेपर अराउंड यू या इंटरनेट है तो उस पर न्यूज़पेपर को ऐड आया होता है जॉब के लिए, उसमें सारा डिफाइन किया होता है कि ये जॉब है इन अ शॉर्ट फॉर्म, ये जॉब है और इसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जॉब के बारे में जो लिखा होगा दैट इज अ शॉर्ट समरी ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, और जो पर्सन के बारे में लिखा होगा कौन सी क्वालिफिकेशन, कौन सी स्किल्स, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, वो उसकी जॉब स्पेसिफिकेशन है। तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।